Hello friends, today I am going to talk about the poem A Photograph composed by Shirley Dawson. First of all, I will discuss the summary of the poem. After that, I will explain the poem stranger-wise. Let's start with the summary of the poem. In this poem, the poetess describes how deeply she feels the loss of her mother. इस poem में poetess describe करती है कि वह कितनी गहराई से अपनी माँ को खोने का दर्द महसूस करती है. Her mother has now been dead for more than 12 years. उसकी माँ क्या है? उसकी माँ को मरे हुए 12 साल से ज्यादा हो गई हैं. The poetess recalls how her mother used to look at a photograph and remembers her own childhood. पोएटिस याद करती है कि उसकी माँ कैसे फोटोग्राफ को देखती थी एंड अपने बचपन को याद करती थी. When that photograph was taken, जब उस फोटोग्राफ को लिया गया था, the mother was just a girl of about 12 years old. माँ केवल 12 साल की थी. The photograph shows the mother with two of her girls cousin on a sea beach. फोटोग्राफ दिखाता है पोएटिस की मदर को और उसकी दो कजिन सिस्टर्स को, बहनों को on a sea beach, समुद्री तट पर. All the three girls were smiling at the uncle who was taking their photograph. Three girls smile कर रही अंकल की तरफ देखकर जो फोटोग्राफ उनका ले रहे थे. The mother would show this photograph to the poetess. माँ दिखाती थी फोटोग्राफ पोएटिस को and thought of those happy days और उन खुशी भरे दिनों को की बातें किया करती थी. She would laugh while talking of that sea holiday. वह उन समुद्री हॉलीडे की बात करते हुए हंसती थी. But a great change had come in mother's by that time. किंतु उस समय उसकी माँ के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था. She was now a middle-aged woman, middle-aged woman थी and had the poetess as a daughter और poetess उनकी बेटी थी. All her former loveliness was gone. उनकी जितनी सुंदरता थी पहले वो चली गई थी. Recalling her mother, the poetess says, अपनी माँ को याद करते हुए poetess कहती है, the sea holiday was her past. Sea holiday उसकी माँ का past था. Mine is her laughter और मेरी माँ की हंसी मेरा past था. The poetess intensely feels the loss of her mother. Poetess बहुत गहराई से अपनी माँ को खोने का दर्द महसूस करती है. She remembers how the mother used to talk to her and laugh. याद करती है कि कैसे उसकी माँ उससे बातें करती थी, हंसती थी. But now the laughter is a thing of past. अब तो केवल हंसी क्या है, past की ही चीज रह गई है. The mother has been dead for about 12 years. माँ को मरे हुए लगभग 12 साल हो गए हैं. The poetess feels very sad and lonely. पोएटिस बहुत दुखी महसूस करती है, अकेलापन महसूस करती है. She says that now she is in a situation where there is nothing to say at all. वह कहती है कि अब ऐसी स्थिति हो गई है कि कुछ भी कहने के लिए नहीं बचा है. It is all emptiness for her. उसके लिए केवल खालीपन ही रह गया है. It has killed all feelings in her. उसकी माँ की डेथ ने सारी फीलिंग्स को उसके अंदर मार दिया है. The silence of her situation, उसकी सिचुएशन की जो साइलेंस है साइलेंस जो है वह उसको चुप करा देती है. It is a death like silence. ये एक मृत्यु के समान साइलेंस है. Now, now I will explain the poem Stranger Voice. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and see the big girl some 12 years or so. पोएटिस एक फोटो देख रही है. वह उसकी माँ की फोटो है. इसमें वह देखती है कि उसकी माँ कैसी दिखा करती थी जब वह एक छोटी लड़की थी. उस समय वह लगभग 12 साल की होंगी. फोटो में वह एक समुद्र तट के ऊपर दिखाई दे रही हैं. उसके साथ उसकी दो मौसेरी बहनें हैं, कजिन्स हैं. वह अपनी कजिन सिस्टर के साथ घूम रही हैं और दोनों ही ने ही उसकी पोएटिस की मदर का हैंड पकड़े हुए हैं. Now I will explain the question answer of this stanza. Name the poem and the poet. The name of the poem is a photograph. Poem का नाम photograph है. The name of the poet is Shirley Dawson. और poetess का नाम है Shirley Dawson. What does the word cardboard denote? Cardboard यहाँ पर किसको denote कर रहा है, किसके लिए आया है? It denotes a photograph. Cardboard photograph के लिए आया है. We showed the poetess mother and her two girl cousin.
जो पोएटिस की मदर को और उसकी 2 बहनों को दिखा रही है। Who were the 2 girls? दोनों गर्ल्स कौन थी? They were the cousins of पोएटिस मदर। पोएटिस की माँ की कजिन्स थी वो। What were the 2 girls doing? दोनों बहनें क्या कर रही थी? Each one of them was holding one hand of the poetess mother. उनमें से प्रत्येक ने पोएटिस की माँ का हाथ पकड़े हुए था। Who has been said to be the big girl? Why? किसको कहा गया है बड़ी लड़कियां क्यों? The poetess mother has been said to be the big girl. पोएटिस की माँ को कहा गया है बड़ी लड़की। She was older and taller than the other 2 girls. वह बड़ी थी और लंबी थी दोनों लड़कियों से ज्यादा। What did the cardboard show? कार्डबोर्ड किसके लिए आया है? It showed 3 girls walking with bare feet in the shallow water of the sea. ये है तीनों लड़कियों को दिखाता है कि वो समुद्र के पानी में नंगे पैर घूम रही थी। What does the poetess say about the mother? Poetess क्या कहती है अपनी माँ के बारे में? She says that the mother was then only a girl of about 12 years. तब वह 12 साल की उसकी माँ थी उस समय। Now I will discuss the second stanza of this poem. All three stood still to smile through their hair. तीनों ही खड़ी हुई थी, स्माइल कर रही थी। उस समय ऐसा लग रहा था कि हवा चल रही थी तो उनके बाल जो थे वो बिखरे हुए थे, उनके फेस पर आ रहे थे। एट द अंकल विद द कैमरा, और अंकल के पास कैमरा था। ऐसा लग रहा था कि अंकल क्या है उन तीनों का फोटो ले रहे थे। A sweet face my mother's that was before I was born. मेरी माँ बहुत सुंदर थी मेरे पैदा होने से पहले का वह फोटो था। उस समय मेरी माँ बहुत सुंदर थी। एंड द सी विच appears to have changed less, और ऐसा लगता है कि समुद्र में बहुत ही कम परिवर्तन होता है, यानी प्रकृति बहुत कम चेंज होती है। Was their terrible strangest fate, वह उनके पैरों को धो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह समुद्र क्या है उनके नंगे पैरों को धो रहा था। Now I will discuss the question answer of this sentence. Who do the words all three refers to? ये जो शब्द है all three ये किसके लिए यहाँ पे आए हैं? They refers to the poetess mother, वह poetess की माँ के बारे में बता रहे हैं। And the 2 girl cousins of the mother, और 2 cousins बता रहे हैं उसकी माँ की। Why do you think they stood still? तुम क्या सोचते हो कि वह क्यों खड़ी थी ऐसी चुपचाप? They stood still because they were going to be photographed. वो चुपचाप इसलिए खड़ी थी क्योंकि उनका फोटोग्राफ होने जा रहा था। Who were they smiling at? वे किसको देखकर स्माइल कर रही थी? What was the uncle doing? अंकल क्या कर रहे थे? They were smiling at the uncle. अंकल की तरफ देखकर वो स्माइल कर रही थी। He was taking a photograph of the 3 girls. वो तीनों लड़कियों को फोटोग्राफ ले रहे थे। What picture do the words smile through their hair bring to your mind? कौन सी ये पिक्चर, ये जो वर्ड्स हैं स्माइल थ्रू दियर हेयर, इन शब्दों से कौन सी पिक्चर तुम्हारे माइंड में आती है? इट वॉज परहैप्स अ विंडी डे, ऐसा लगता है कि विंडी डे था, हवादार दिन था। द विंड मेड द बर्ड्स हेयर फ्लाई ओवर दियर फेस, ऐसा लग रहा था कि ये जो हवा है ये लड़कियों के चेहरे को उनके बालों को उड़ा रही थी। एंड थ्रो दियर हेयर, अपने बालों के साथ ही द गर्ल्स वर स्माइलिंग एट द अंकल, लड़कियां स्माइल कर रही थी अंकल को देखकर। हु वाज टेकिंग दियर फोटोग्राफ, जो उनका फोटोग्राफ ले रहे थे। व्हाट डज द पोएटिस से अबाउट द मदर? पोएटिस क्या कहती है माँ के बारे में? शी सेड दैट हर मदर हैड अ स्वीट फेस, कि उसकी माँ का स्वीट फेस था। बट इट वाज व्हेन द मदर येट ओनली अ गर्ल ऑफ 12, केवल 12 साल की थी उस समय उसकी माँ। इट वॉज बिफोर द पोएटिस वाज बॉर्न, ये उस पोएटिस के पैदा होने से पहले का था। What comparison has been made in these lines? इन लाइनों में कौन सी कंपैरिजन की गई है? The poetess compared the 3 girls in the photograph with the sea. लड़की यहाँ पर जो पोएटिस है वह तीनों लड़कियों को कंपेयर करती है फोटोग्राफ में, तीनों लड़कियां हैं विद द सी, समुद्र के साथ। While there has been little change in the sea, क्योंकि समुद्र में बहुत कम परिवर्तन होता है। The girls have terrible change, और लड़कियां क्या है पूरी तरीके से चेंज हो गई हैं। Explain. Was there terribly transfixed feet?
तो इस लाइन को एक्सप्लेन करना है। दीज वर्ड्स कंट्रास्ट द to transience of human beings with the permanence of sea। समुद्र के जो परमानेंस है, समुद्र का जो परमानेंट रहता है, ह्यूमन बींग्स ट्रांजिस्ट होता है, ट्रांस मतलब चेंज होते रहते हैं, तो उससे कंट्रास्ट किया गया है। वाइल द सी रिमेन्स फॉर एवर ऑलमोस्ट से, जबकि समुद्र तो हमेशा सेम ही रहता है। ह्यूमन बीइंग चेंज वेरी फास्ट इन दियर फिजिकल अपीयरेंस, और ह्यूमन बीइंग का जो फिजिकल अपीयरेंस होता है वो बहुत जल्दी से चेंज होता रहता है। Now I will discuss third stranger of this form. Some 20-30 years later, अब उसकी माँ लगभग 20-30 years की होगी, लगभग 35 साल की होगी उसकी माँ। She had laughed at the snapshot। यह हंसती है उस फोटोग्राफ को देखकर, और पोइटर से कहती है सी बेटी एंड डोली। सी वुड से, पोइटर से वो कहती है देखिए देखो बेटी एंड डोली, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और कैसे उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं समुद्री तट के लिए। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। समुद्री जो सी हॉलीडे थी वह उसका पास्ट थी उसकी माँ का, एंड माइन इज हर लाफ्टर, और मेरा जो पास्ट है वो मेरी माँ की हंसी थी। बोथ वरी विद द लेवर्ड एज ऑफ लॉस, और दोनों ने ही लॉस किया, दोनों ने ही किसी न किसी चीज को खोया है, लेकिन फिर भी वो है उस मुश्किल समय में भी ईज होने की कोशिश करती हैं, बहुत खुश रहने की कोशिश करती हैं। हु डज सी इन दीज लाइन्स रेफर्स टू, वो किसके लिए आया है यहाँ पे, जो सी है वह किसके लिए आया है इन लाइनों में। द वर्ड सी रेफर्स टू द पोएटिस मदर, पोएटिस की माँ के लिए आया है सी। What snapshot is the poet talking about? किस snapshot के लिए बातें कर रही है poet यहाँ पर? She is talking about the snapshot। वह बातें कर रही है फोटोग्राफ के बारे में। That has her mother photo as a girl of 12 along with mother's two girl cousin। जिसमें उसकी माँ है लगभग 12 साल की, और उसकी माँ की दो बहनें भी हैं, कजिन्स भी हैं। Who were Betty and Dolly? Betty and Dolly कौन थी? They were mother's girl cousin। वह माँ की कजिन्स थी। What made her laugh? कौन हंसाता है उसे? She laughed to see how they were dressed at the time as young girls। जब वो यंग गर्ल्स थी तो वो कैसी ड्रेस पहना करती थी, इस बात पर वो हंसती है। What comparison has been made in these lines? कौन सी कंपैरिजन दी गई है इन लाइनों में? The poetess compares the sea holiday of her mother with her mother's laughter। पोएटिस यहाँ कंपेयर करती है अपनी माँ की जो सी हॉलीडे थी अपनी माँ की हंसी के साथ। द सी हॉलीडे वाज हर मदर पास्ट, सी हॉलीडे उसकी माँ का पास था। द मदर्स लाफ्टर वाज द पोएटिस पास, और मदर की हंसी पोएटिस का पास थी। एक्सप्लेन करो बोथ बरी विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस। इस लाइन को एक्सप्लेन करना है। द मदर फेस वाज वरी ओवर द लॉस ऑफ हर चाइल्डहुड जॉयस। जो मदर का फेस था वह भी मतलब दुखी था, चिंतित था अपनी चाइल्डहुड खुशियों के लॉस पर। द पोएटिस फेस वरी ओवर द लॉस ऑफ हर मदर, पोएटिस भी दुखी थी अपनी माँ को माँ को खोने के ऊपर। बोथ ऑफ देम हैड लर्न टू लिव विद देयर लॉस, दोनों ने सीखा अपने लॉस के साथ जीना। Passage I will discuss now what passage of this poem. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived। वह अब उन्हें लगभग उतने ही साल हो गए जितने साल की वह लड़की थी। लगभग 12 साल उन्हें पोएटिस की माँ को मरे हुए हो गए हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और इस सिचुएशन में कुछ भी कहने को नहीं रहा है। इट साइलेंस है, इसकी साइलेंस ही पोएटिस को चुप करा देती है, शांत करा देती है। नाउ आई विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम। हु हैज बीन डेड एंड हाउ लॉन्ग? कौन डेड हो गया है और कितने समय हो गया है? द पोएटिस मदर हैज बीन डेड फॉर अबाउट 12 years। लगभग 12 साल हुए हैं पोएटिस की माँ को मरे हुए। What does the poetess remember of that girl? Poetess क्या याद करती है उस लड़की के बारे में? She remembers how much her mother had changed from a young girl। वह याद करती है कि कितनी
चेंज हो गई, उसकी माँ एक यंग गर्ल से कितनी चेंज हो गई थी। सी आल्सो रिमेंबर द स्वीट लाफ्टर ऑफ हर मदर, याद करती है अपनी माँ की हंसी को भी। हाउ डज द पोइट फील अबाउट दिस सर्कमस्टेंस? पोइटेस कैसे फील करती है इस सर्कमस्टेंसेस में, इस परिस्थितियों में? सी वेरी सैड, वह बहुत सैड फील करती है एंड लोनली, अकेलापन महसूस करती है विदाउट हर मदर, अपनी माँ के बिना। इट इज नाउ ऑल एम्प्टीनेस फॉर हर, उसके लिए केवल ये सब खालीपन था। एक्सप्लेन करिए। इट साइलेंस साइलेंसेस द लॉस ऑफ हर मदर इज टू डीप फॉर द पोएटेस। माँ को खोने का जो दर्द है वो बहुत गहरा था पोएटेस के लिए। नाउ सी हैज नथिंग टू से एट ऑल, और उसके पास कुछ नहीं था कहने के लिए। द साइलेंस ऑफ हर लोनलीनेस, उसकी जो लोनलीनेस की जो साइलेंस, अकेलेपन की जो शांति है, साइलेंस, उसको उसने साइलेंस कर दिया है, किल्ड कर दिया है उसके सारे इमोशंस को पोएटेस की। थैंक यू।